Hello, my dear children. How are you? I welcome you all on behalf of Jetkin International School and the virtual class. Children, today we are going to see lesson number 5, and in that we are going to see the name of the lesson is Sniffles the Crocodile and Punch the Butterfly. It is protecting animal. Now, children, in this video we are going to study about the vocabulary and grammar part. Before this video, we had seen about if you will see, yes, the comprehension part. Now let's see and gain some knowledge about the vocabulary and grammar. So let's start. See children, if you are having your book, please open page number 48. See children, vocabulary is there. So what do you mean by compound words? See, compound words are the words formed by combining two smaller words together. For example, class plus room, so it become classroom. Like that, gold plus fish, it become goldfish. Okay, so हमने यहाँ पे क्या किया है, दो छोटे छोटे वर्ड्स को मिला दिया है और उससे एक बड़ा वर्ड तैयार किया है. तो जब हम दो छोटे वर्ड को कंबाइन करते हैं, स्मॉलर वर्ड्स को कंबाइन करते हैं टुगेदर, दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. उनको हम कंपाउंड्स वर्ड बोलते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड वर्ड्स चिल्ड्रन? Compound words are words formed by combining two smaller words together. For example, classroom and goldfish. So see, one question is given in your, if you will see your book, yes, you have to solve it. Yeah, use the picture. See, if you are having your pencil now, please take it and solve it right now. So use the picture clues to form compound word. See children, first picture, first point, if you will see, first example, if you will see the picture of cow and one boy, so it become cowboy, cowboy. Okay, second, we will see the picture, it is of sun and flower is there, so it becomes sunflower. Okay, then we are having table and one cloth, so we will say tablecloth. Okay, two smaller words, when they combine together, they make compound words. So tablecloth is compound words. See, fourth one, moon and the another picture is light, so it become moonlight. Like that, we are having bed and plus room, it become bedroom. So don't you feel it is very easy? Yes. Let's see the B one. B question. Look at the picture clues and make compound word. One has been done for you. Okay, so what is the picture back? If you will see, yeah, I will zoom it so you will understand. Yes, book plus shelf, so it become bookshelf. Book plus shelf, bookshelf children. Then lap plus top, laptop. See the picture, hair plus brush, hairbrush, and tooth plus paste, toothpaste. So these all are laptop, hairbrush, toothpaste, and your bookshelf. Okay, they all are what? Yes, they all are the compound words, children. Okay, let's see the next part. We will see. Yes, see the singular and plural. See children, listen carefully. It is very important part. Singular refer to only one person or thing. Singular, it refer to one person, एक व्यक्ति, and one thing. Okay, for example, if I am saying car is a thing, player is a person, spoon is a thing. Okay, so plural refer to more than one person. हमें मालूम है प्लूरल का मतलब क्या होता है. जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ या व्यक्ति होता है, पीपल होता है, तो वी आर सेइंग इट इज़ प्लूरल. सो मोस्ट वर्ड आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू द एंड. फॉर एग्जांपल, बहुत ईजी है चिल्ड्रन, अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ओके, लिसन केयरफुली, अगर हमें, हाँ यस चिल्ड्रन, अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल उसे बनाना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, सॉरी, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, सॉरी नॉट केसेस, मोस्ट वर्ड्स दे आर चेंज इनटू प्लूरल. हम जब सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो वो वर्ड के पीछे ज़्यादा करके एस लगता है. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर where when they change into plural, at the end we are adding s. For example, car become cars, player become players, spoon become spoons. When the letter before the final y is a consonant, change the y
to an I and then add es. फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अगर कोई वर्ड y से एंड होता है, जैसे कि यहाँ पे बेरी है, ठीक है, अगर ये सब कुछ रूल्स है बेटा, सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ रूल्स हैं. क्वेश्चन कैसे आता है, चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल. सो आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर से प्लूरल क्या होता है, प्लूरल से सिंगुलर क्या होता है. ओके, तो पहला रूल मैंने आपको बताया कि ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं उनके पीछे हम प्लूरल चेंज करते हैं, प्लूरल में चेंज करते हैं सिंगुलर को, तो उसके पीछे एस लगता है. बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, इफ़ द वर्ड एंड विथ वाई, अगर कोई वर्ड एंड होता है वाई से, तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव वाई और वाई की जगह हम आई लगाते हैं. गेटिंग, वी रिमूव वाई, हम वाई रिमूव करते हैं कब, जब वो बीच में है वाई वर्ड के तब. नो, इफ द वर्ड एंड विथ वाई, इट मीन्स अगर कोई वर्ड एंड होता है वाई से तो वी रिमूव वाई, वी पुट आई, वाई को हटा दिया तो अभी कुछ देना भी पड़ेगा, तो हम उसको आई देते हैं और आई लगाने के बाद हम ई एस लगाते हैं. अंडरस्टूड. आप बी ई आर आर वाई और ई एस नहीं लिख सकते, आपको वाई हटाना पड़ेगा, उसकी जगह आपको आई लगाना पड़ेगा एंड देन ई एस. अंडरस्टूड. पर ये हम कब कर सकते हैं, इफ द वर्ड एंड विथ वाई, लाइक सिटी, देखो हमने वाई हटा दिया, आई लगाया और ई एस, सो इट बिकम सिटीज. पोनी, वी रिमूव वाई, वी पुट आई, देन ई एस. रिप्लाई, वी रिमूव वाई, we put I and then we add es. Understood? So berry become berries, city become cities, pony become ponies, reply become replies. See children, remember that if the word has a vowel just before the final y, we do not drop the y and add simply s. See, listen carefully. If the word end with y, अभी यहाँ पे रूल चेंज हो गया. देखो अभी अगर आपने यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, हमने इससे पहले क्या देखा, अगर इफ द वर्ड एंड विथ वाई तो हम ओके उसके वाई इज अ कॉन्सोनेंट. ओके, देखो आपने देखा यहाँ पे जो मैंने ये आपको बेरी का बताया था, वर्ड हो रहा है एंड वाई से. ओके, सी यहाँ पे वर्ड, सॉरी, यहाँ पे वर्ड एंड हो रहा है वाई से. ओके, यस. ओके, तो उसके वाई के आगे क्या है, आर है, बी ई आर आर वाई. वाई के आगे कौन सा लेटर है, आर है. आर क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, आपने पढ़ा है ना. वोवेल, 5 वोवेल्स आर देयर, ए ई आई ओ यू एंड 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. तो वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, देखो सिटी में वाई के आगे टी है तो टी कॉन्सोनेंट है, पोनी में वाई के आगे एन है तो एन कॉन्सोनेंट है, रिप्लाई में वाई के आगे एल है तो वो भी कॉन्सोनेंट है. अगर when the word end with y and before y if there is consonant, we are removing y, we are adding I and then we are adding es. ये रूल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल समझेगा तभी आपको नेक्स्ट रूल समझेगा. अब नेक्स्ट रूल में क्या बोला है बेटा, यहाँ पे ध्यान से दो. देखो अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है इफ द वर्ड एंड विथ y बट बिफोर y इफ देयर इज वोवेल. ओके, अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है क्या, देखो बी ओ वाई, वाई बॉय, तो वाई के आगे क्या है, ओ है. ओ क्या है, वोवेल है, करेक्ट. मंकी, वाई के आगे बिफोर क्या है, ई है, ई भी वोवेल है. देन वी आर हैविंग रे, रे में वाई के आगे बिफोर ए है. सो के तो दे ऑल आर हैविंग वोवेल बिफोर वाई. सो हम वाई यहाँ रिमूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसके पीछे एस ऐड करेंगे. सो बॉय बिकम बॉयज, मंकी बिकम मंकीज एंड रे बिकम रेज. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. If the word end with y, but if the second last letter is a consonant, we are removing y, we are adding I and then we are adding es. But if the word end with y, अगर कोई word y से end होता है और उसका second last letter वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल है, तो हम डायरेक्टली उसके पीछे एस लगा देंगे, हम यहाँ पे वाई रिमूव नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? सी चिल्ड्रन, मोस्ट नाउन दैट एंड इन एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड add es to the form their plural. सी अगर कोई वर्ड एंड होता है, नाउन एंड होता है एस एस से, देखो क्लास में पीछे एस एस आता है, तो हमने क्या किया, वैसा का वैसा वर्ड लिखा क्लास
और उसके पीछे व्हाट वी एडेड ईएस, लाइक दैट विश इसके पीछे एस एच है सो वी एड ईएस, चर्च इसके लास्ट का 2 लेटर सी एच है इसलिए ईएस ऐड किया है, बॉक्स एक्स से एंड हो रहा है इसलिए हमने ई एस डाला है, जेड से एंड हो रहा है इसलिए हमने ई एस डाला है। तो जो वर्ड एस एच सी एच एक्स और जेड से एंड होते हैं उनके पीछे उनके वो लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, वी ऐड ई एस। Understood, children? So you have to keep all this thing in your mind. See, now we will solve some exercise. Fill in the blanks with the correct form of the nouns given in bracket. We lost the first match, but we won the next 2 matches. See, we lost the first. First, यहाँ हम singular के बात कर रहे हैं इसलिए match होगा. But we won the next 2 मैचेस, ब्रैकेट में मैच दिया, हमें कहाँ सिंगुलर यूज़ करना है कहाँ प्लूरल यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, माई स्कूल हैज़ 20 बसेस, 20 सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, दैट्स वाई वहाँ पे हमने बसेस लिखा है। आई ऑल्सो टेक अ बस टू स्कूल। माई फादर बॉट टू प्लूरल अगेन, वॉचेस, वॉच बिकम वॉचेस, one for her sister, my sister, and another for me. We saw several foxes at the zoo. बहुत सारे फॉक्सेस देखे हमने. वन ब्राउन फॉक्स, नाउ वी आर स्पेसिफाइंग, सो वन वी आर टॉकिंग अबाउट वन, सो सिंगुलर, फॉक्स वॉज स्लिपिंग. देर इज अ थॉर्नी बुश, बुशेज हो जाएगा, बट यहाँ पे देर इज अ है, अ यानी सिंगुलर, ओके, यानी एक ही थॉर्नी बुश है वहाँ पे, दैट्स वाई हमने उसको बुशेज नहीं किया. देयर आर मैनी बुशेज बिहाइंड द हाउस, बट अगर एक है तो बुश, एक से ज़्यादा है तो बुशेज. थॉर्नी अ बोला है इसलिए हमें पता चलता है कि वो सिंगुलर है. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यस, the next slide is of grammar, children. See children, question mark is there. What do you mean by question mark? ये सब हमने पढ़ा है इसलिए I am taking in a little bit in speed I can say. Yes, question mark. You know what is the sign of question mark? I taught you in grammar. A question mark is used to end a question. हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंट दिस मैन हैव स्किन्स ऑफ देयर ओन, व्हाट विल आई डू, है ना. सो इसके पीछे देखो, आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए आपने क्या किया है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है. अभी एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू शो अ स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज सरप्राइज, एंगर और डिलाइट. इट इज यूजली प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस. An exclamation mark is not followed by a full stop. For example, what a bad day, how beautiful the rose looks. Understood? देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में क्या बोला है. देखो चिल्ड्रन, आपको क्वेश्चन मार्क यानी क्या होता है ये पता है. ओके, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. इसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. अंडरस्टूड? और इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में लगाते हैं, वो सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है. एक्सक्लेमेशन मार्क भी सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, बट ये कोई क्वेश्चन पूछने पे नहीं लगाया जाता है. व्हेन वी ऐड क्वेश्चन मार्क, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, एंड व्हेन वी ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क व्हेन वी शो अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी क्या? जैसे हम बहुत खुश हो गए, सरप्राइज. Okay, oh my god, what a beautiful dress. So we are putting exclamation mark at the end. Anger, बहुत गुस्सा आता है, oh no. Okay, so that time you are also putting, these all are our emotion, children. Delight, जब हम बहुत खुश होते हैं, या खुश होना और सरप्राइज होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. खुश होना हैप्पीनेस, डिलाइट, और सरप्राइज जब हम चकित हो जाते हैं, गेटिंग. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल बैड डे, एंगर या सैडनेस में हम बोल रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल द रोज लुक्स. ओके, सो एक्सक्लेमेशन मार्क वी आर यूजिंग. सो चिल्ड्रन, सी द क्वेश्चन, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन mark. What they, so this question mark and this what we are saying, yes, this question mark and this exclamation mark actually, yes children, this question mark and this exclamation mark is actually known as punctuation mark, children. Okay, so how lucky, see the first question. A, put the correct punctuation mark at the end of each sentence. How lucky you are. Is it time to go home? How lucky you are. This is expression, this is our sudden emotions. Okay, so exclamation mark.
is it time to go home? Question mark. How hard he hit the ball? Exclamation mark. Do you have an umbrella? Question mark. What a beautiful painting! Exclamation mark. Do you make that yourself? Question mark. What did you do with the money? Question mark. Will you go come to school tomorrow? Again, question mark. So we are using exclamation mark and question mark, children. Now let's see possessive pronouns. Okay, children. A possessive pronoun is a pronoun that show possession, children. It is not followed by a noun. For example, he can grow anything in the garden. The garden is his. Possessive pronoun means what, children? It's show possession. Possession means ownership. You can say ye mera hai. It is mine. Okay, so like it is not followed by a noun. For example, he can grow anything in the garden. The garden is his. वो garden किसका है? वो उसका garden है. वो belong किससे करता है? वो garden वो उस he से belong करता है, उस आदमी से belong करता है. Mr. and Mrs. Verma have the key to this flat. This flat is theirs. So again, theirs is possessive pronoun. ओके क्योंकि वो वर्ड बताता है कि वो फ्लैट किसका है, नाउन का है, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा का. अंडरस्टूड. सो अंडरलाइन द पॉजिटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस. सी, दिस इज हर पेन एंड दैट इज हिज. दिस इज हर पेन एंड दैट इज हिज. तो यहाँ पे हम किस किस को करेंगे? हर एंड हिज को करेंगे. यहाँ पे मैंने हिज को ही किया है, पर यहाँ पे हर को भी करना है. ओके. योर नेल्स आर क्लीन बट माइन आर डर्टी. सो माइन इज possessive pronoun. Okay. Then I like those bicycle. Are they yours? So yours is again possessive pronoun. You have had your apple. This apple is mine. Mine is possessive pronoun. Let her wear the shoes. Those shoes are hers. Again possessive pronoun. So here, children, I think you all understood whatever I taught you. Yes, the grammar part, and yes, the singular and plural form. Okay, the remaining by the compound words also, vocabulary and grammar we have seen. So I hope you all understood it. Okay, so the rest part I will give you in your in the PDF form. Okay, children, till then, thank you and have a nice